one and all present here. On behalf of Farah College of Engineering and IT, I extend a hearty welcome to our distinguished guests. I also welcome all the dignitaries, faculty members and students in this one-day awareness program on intellectual property rights under CAPELA and in association with MHRD Innovation Cell. It is indeed a privilege that such a program is being organized in our campus, and it will surely add to the awareness of the faculty members and the students and all present here. And now I take the privilege of introducing our distinguished guest who is here with us today. We have with us Mr. Dharmendra Pal, Examiner of Patents and Design. He is in the Intellectual Property Rights Office, New Delhi. He is from the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. He has been working in the capacity of Examiner of Patents and Design at the Indian Patent Office, New Delhi since April 2016 and has examined more than 1,000 patent applications. He is also working for International Search Authority, WIPO, as an authorized officer from the Indian Patent Office since September 2017. He is working for IPEA, International Preliminary Examining Authority, as an authorized officer. He has been deputed to the Ministry of Commerce and Industry, Udyog Bhavan, New Delhi, for works related to the launch event of PM Gati Shakti National Master Plan. Presently, he is appointed as Coordinator for National Intellectual Property Awareness Mission. If I talk about academics, he completed his Bachelor's of Engineering from RGIT, an Institute of Border Security Force, and postgraduate diploma in Intellectual Property Rights. He has attended various seminars and training programs, and he is indeed a very knowledgeable personality who is here amongst us. We welcome you here, sir. It is indeed a privilege and honor to have you here with us. And now I would like to invite Mr. Dharmendra Pal for addressing the gathering. The first question is intellectual property. That means what we understand about intellectual property. Here is the two words. First is intellectual, second is property. मुझे लगता है यहाँ सभी लोग property word से तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे. Am I right or wrong? Property means something जिसको आप मार्केट में सेल करके क्या कमा सकते हैं? पैसा. और अल्टीमेटली हमारा एम क्या रहता है? टू अर्न मनी, राइट और रॉन्ग? सो वी हैव टू डिफरेंट वे टू हैव प्रॉपर्टी. हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है ये मार्केट में पहले से अवेलेबल नहीं है. देन ही कैन अप्लाई फॉर अ पेटेंट, और वंस ही गॉट अ पेटेंट, उसके बाद क्या हुआ? क्या कोई कंपनी उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती है? नहीं. That's the beauty of patent. Once he got a patent, उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को कोई भी कंपनी इंडिया में यूज नहीं कर सकती बिना इनकी परमिशन के. They have to pay some money to what's the name? नवीन. किसी भी कंपनी को उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए नवीन को क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, और फिर इनकी कंसर्ट लेनी पड़ेगी. एक कंसर्ट फॉर्म साइन करेंगे, उसी के बाद वो टेक्नोलॉजी को कोई भी कंपनी यूज कर सकती है. सो दैट इज द वे बाय विच ही क्रिएटेड अ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी से हम क्या समझे कि उस प्रॉपर्टी से हम क्या बना सकते हैं? मनी. हमारे पास जो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी होती है, लाइक हाउस, कार, गोल्ड, these are the traditional properties, or we call it as a physical property by which, because we can touch this property. Okay, लेकिन आकाश ने क्या, नवीन ने क्या किया? इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, और टेक्नोलॉजी डेवलप किससे किया? बाय द इंटेलेक्ट, बाय द ब्रेन. ओके, और उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इन्होंने क्या किया? पैसा कमाया. Am I right or wrong? Got it? So ये ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी जो होती हैं, इनके अलावा देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच वी कॉल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, आप में से कुछ लोग होंगे जो कविताएं लिखते होंगे, कुछ जो होते हैं किताबें लिखना पसंद करते होंगे, कुछ पेंटिंग करना पसंद होते हैं करने, लाइक पेंटिंग या स्केचिंग करते होंगे. अगर आप उस पेंटिंग को मार्केट में बेचेंगे, देन यू विल हैव अ सम अमाउंट ऑफ मनी, राइट और रॉन्ग?
किताब लिखी और उस किताब को आप मार्केट में बेचेंगे तो आपके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको अमाउंट मिलेगा। बट द प्रॉब्लम इज कि आप उस बुक को जैसे ही मार्केट में रिलीज करेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई उस कंटेंट को कॉपी करके एक दूसरी बुक पब्लिश कर सकता है या उसकी फोटोकॉपी करके मार्केट में कम रेट पर बेच सकता है। तो ये अल्टीमेटली आपको हार्म करेगा। व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई फॉर अ कॉपीराइट। अगर आपने कोई भी किताब लिखी है, कोई पेंटिंग किया है, कोई स्केचिंग किया है, तो आप किसके लिए अप्लाई करेंगे, कॉपीराइट के लिए। वंस यू गॉट अ कॉपीराइट, उसके बाद आपके कंटेंट को कोई भी बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉपीराइट। वंस यू गॉट इट, nobody can use your content. Clear? So here is a different type of property like copyright, patent, trademark, industrial design. We will discuss these property in detail one by one. We have created by our mind. Okay? एक तरह की प्रॉपर्टी हमें इनहेरिट होती है पेरेंट्स से, दैट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक हाउस, कार, और दूसरी तरह की प्रॉपर्टी जो हम खुद से बना सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, सो देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज पेटेंट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, कॉपीराइट। वी विल डिस्कस दीस इन डिटेल्स। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद पेटेंट्स। सो पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट। फर्स्ट थिंग, पेटेंट इज एन exclusive right granted by the government. So patent is granted by the government. In case of India, it is granted by the government of India. We grant the patent on behalf of government of India. If you want a patent in USA, then the patent is granted by the government of USA, federal government of USA. Okay. Second thing, it is granted for an invention of new or patent. Now, what is invention? Invention is a solution of any specific technological problem. That means पहले आपको कोई प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपको उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, and that solution is eligible for patent. Am I clear? Like for an example of नवीन को लगा कि अभी जो हमारे पास ऑटोमोबाइल व्हीकल है, इनका माइलेज बहुत ज्यादा है, जो पेट्रोल और डीजल है उनका प्राइस काफी बढ़ रहा है, हमें माइलेज को इंप्रूव करना चाहिए, एंड ही हैज डेवलप्ड सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी बाय व्हिच द माइलेज ऑफ द व्हीकल इज इंप्रूव्ड. सो दैट टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन. द प्रॉब्लम इज कि माइलेज क्या है, कम है. सॉल्यूशन, द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द नवीन. गेटिंग? तो जो इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, ही कैन अप्लाई फॉर अ पेटेंट. Like I have taken an example. अभी हमारे पास मोबाइल चार्जर है. Everybody has used Samsung and Nokia. Earlier उनको चार्ज करने में 2 घंटे लगते थे, फिर 1 घंटा लगने लगा. अभी 20 मिनट में काफी सारी कंपनियां क्लेम करती हैं like in 20 minutes the mobile phone can be completely charged. Suppose आप में से किसी एक स्टूडेंट ने एक ऐसा चार्जर बना दिया that can charge your mobile in let's say 30 seconds due to some like किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए. Okay. So if you develop that kind of charger, तो ये आपका एक प्रॉब्लम था कि मोबाइल फोन को चार्ज करने में टाइम लगता है. दैट इज अ प्रॉब्लम. यू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन कि मैं एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एक ऐसी डिवाइस दे रहा हूँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ बाय व्हिच अ मोबाइल फोन कैन बी चार्ज into 30 seconds. Okay, so that charger is your innovation, that charger is your invention. और इस चार्जर के लिए आपको क्या मिलेगा? पेटेंट. Am I clear? ओके, नाउ पेटेंट हमें मिल गया. सो अब पेटेंट मिल गया, उससे हमें पैसा कैसे कमाएंगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम राइट हो रहा हूं? सभी को क्या चाहिए? सभी को क्या चाहिए? पैसा. फाइन. सो वंस वी गेट अ पेटेंट, अभी हम पेटेंट तो मिल गया, फाइन. अब पेटेंट से हम पैसा कैसे कमाएंगे? सो फर्स्ट थिंग, सपोज आपने ये चार्जर डेवलप कर दिया. क्या अभी किसी कंपनी के पास ऐसा चार्जर है? नहीं. तो फर्स्ट थिंग कि आप इस चार्जर को मार्केट में लॉन्च कर दो. You manufacture that kind of charger by yourself. कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करके इस चार्जर को आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया. या जो टेक्नोलॉजी अभी नवीन ने डिस्क्राइब की, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, माइट है कि आप में से भी कई लोगों ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाइक इनोवेट की होंगी.
तो आपका उसका पेटेंट मिलता है, तो उस पेटेंटेड प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च कर दीजिए, स्टार्टअप के थ्रू या एक रैंडम कंपनी एस्टैब्लिश करके इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। आपने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, क्या कोई कंपनी इसको कॉपी कर सकती है? क्या कोई कंपनी इसको कॉपी कर सकती है? व्हाट्स योर नेम? राजकुमार। आई एम आस्किंग यू राजकुमार, क्या अगर मेरे पास इसका पेटेंट है, क्या कोई कंपनी इसका कॉपी कर सकती है? नहीं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पेटेंट। अगर आपके पास इसका पेटेंट मिल गया तो कोई कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती। अगर इसको कोई कंपनी यूज नहीं कर सकती तो आपका चार्जर जो है वो सब जगह बिकेगा। कोई डाउट? तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर कोई टेक्नोलॉजी को यूज करता भी है, देन यू कैन फाइल अ केस और आप क्या डिमांड कर सकते हैं? पैसा डिमांड कर सकते हैं, रॉयल्टी जिसको बोलते हैं। क्लियर? दैट्स द सेकंड वे टू अर्न मनी। थर्ड, कि आप चाहते हैं कि मैंने पेटेंट तो कर लिया, आई एम अ स्टूडेंट, मेरे पास कोई प्लांट एस्टैब्लिश या इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने का एक्सपीरियंस नहीं है। व्हाट यू कैन डू? यू कैन लाइसेंस योर पेटेंट। आप इस पेटेंट के साथ सैमसंग के साथ जा सकते हैं। सैमसंग को बोलते हैं देखो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, मेरे पास केवल पेटेंट है, आप इस पेटेंट का यूज कीजिए, मैं आपको इसके राइट असाइन कर रहा हूं, आप मैन्युफैक्चर कीजिए और मार्केट में चार्जर को लॉन्च कीजिए। आपको अगर प्रॉफिट 100 रुपए होता है तो उसमें से 60 रुपए मेरे होंगे, 40 आपके होंगे। दैट्स द रॉयल्टी शेयरिंग मॉडल। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिर्फ आपने पेटेंट लिया और पेटेंट के बाद आपके पास क्या आता रहेगा? एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर मंथ में आता रहेगा। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नाउ तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नवीन के पास अभी जो इनोवेशन था उन्होंने 3rd ईयर में किया है, हम क्या करते हैं इस इनोवेशन को अपने अंदर रख लेते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये इनोवेशन तो हो सकता है पहले से हो चुका होगा। तो इसके लिए बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, नो प्रॉब्लम इज टू बिग एंड नो सॉल्यूशन इज टू स्मॉल। जिसको हम बोलते हैं नो आइडिया इज सो स्मॉल एंड नो प्रॉब्लम इज टू बिग। कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती और कोई भी आइडिया बहुत छोटा नहीं होता। अगर आपको लगता है आपके आइडिया में, आपके इनोवेशंस में थोड़ा सा भी कैलिबर है, जस्ट गो फॉर पेटेंट फाइलिंग, एक्वायर अ पेटेंट एंड देन आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या किया। होपफुली पेटेंट सभी को क्लियर होगा। ओके, here the three things. First is patent is exclusive right. That means it's your legal right to exclude others from making, using, selling to your invention. It is clear. Second, it's a territorial right. As I mentioned, patent is granted by government. That means if you acquire a patent in India, that is valid within the territory of India. That means आपने जो चार्जर बनाया वो इंडिया के लिए, आपने उसमें पेटेंट लिया तो इंडिया में कोई उसको यूज नहीं कर सकता। Am I right? क्या यूएसए में यूज कर सकता है? Yes, it can be used in USA. Your technology can be copied in USA. So what's the solution for that? कि आपको इंडिया में पेटेंट लेना पड़ेगा एंड यूएसए में भी लेना पड़ेगा। ओके, इसके लिए एक सेटअप है, आप इंडिया में पेटेंट लीजिए, वी हैव अ डिफरेंट रूट पीसीटी एंड कन्वेंशन बाय व्हिच यू कैन एक्वायर अ पेटेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो आपका अपने प्रोडक्ट की, जो आपने स्टार्टअप एस्टैब्लिश किया है, जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उसकी सूटेबिलिटी चेक करना है कि वो प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट के लिए तो है, क्या वो यूएसए के मार्केट के लिए भी है। दैट मींस योर प्रोडक्ट कैन बी लाइक सेल इन द मार्केट ऑफ यूएसए। अगर आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट की ऑडियंस या यूजर्स यूएसए में भी है तो आपको उस प्रोडक्ट का पेटेंट यूएसए में भी ले लेना चाहिए। ओके, एंड द थर्ड थिंग, पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 20 इयर्स। दैट मींस दैट एक्सक्लूसिविटी कि सिर्फ उसको आप ही यूज कर सकते हैं, nobody can use your invention। वो कितने टाइम फ्रेम के लिए? केवल 20 साल के लिए। आपके पास 20 साल है, आप उस 20 साल में उसको कैसे भी यूज कर लीजिए। आफ्टर 20 इयर्स फिर उस पेटेंट को कोई भी यूज कर सकता है। ओके, सो दैट एक्सक्लूसिविटी इज फॉर 20 इयर्स। लाइक आई हैव टेकन सम एग्जांपल ऑफ सैमसंग। आप सभी के पास मोबाइल फोन है, उसमें हम पीडीएफ रीड करते हैं। पीडीएफ रीड करने के लिए हम डबल टैप बीच में करते हैं तो दैट डॉक्यूमेंट गेट इनलार्ज्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दैट इज द पेटेंटेड टेक्नोलॉजी ऑफ सैमसंग। अगर उस टेक्नोलॉजी को कोई दूसरी कंपनी भी यूज करती है तो उनको क्या करना पड़ता है? उसके लिए सैमसंग को रॉयल्टी देनी पड़ती है। Here's a great famous Indian inventor, like here's a Narinder Singh. He is the first man who bent the light. Actually ये लाइट मेरे सामने अभी आ रही है, क्या हम इसको बेंड कर सकते हैं? Yes or no? Yes, you are an engineer यार, ये 12th क्लास के बच्चे भी जानते हैं।
Again, it was not possible, but because of the invention of optical fiber, it is possible right now. That means he is the first man who bent the light. He owns around 100 patents. Right or wrong? Second, Jaipur food. ये अपना देसी है, अपने पास के ही है. इन्होंने क्या इन्वेंट किया? पीके सेठी सर. इन्होंने क्या इन्वेंट किया? प्रोस्थेटिक फूड. इनका नाम इन्होंने रखा, इनके नाम पे ही इनका नाम रखा जाना था सेठी फूड, बट ही डिनाई कि इनको सेठी फूड नहीं बोलेंगे. We used to call it as a जयपुर फूड. तो जिन एक्सीडेंट के बाद जिनके जो चल नहीं पाते थे उनके लिए उन्होंने क्या बनाया? जयपुर. ओके, आप ऐसे कोई इनको पहचानता है क्या? क्या नाम है इनका? वाह, वी नो हिम एज अ ग्रेट डांसर. Am I right or wrong? What is the name of this step? He is famous for moonwalk, exactly. And this is a step which he has done in criminal dance. Okay, basically he leaned itself by 45 degrees in front of thousands of people. So it's not a magical trick. I just want to ask you कि ये step इन्होंने किया कैसे? Yeah, he has some specific design shoe, or because of his shoe, he is able to dance like this. अब एक और क्वेश्चन आता है कि जब ये इतने बड़े ग्रेट डांसर थे और इनके पास ऐसा स्पेसिफिक कुछ शूज था, तो बाकी सारे डांसर उस शू को क्यों नहीं मैन्युफैक्चर किए और क्यों नहीं वो इनकी तरह डांस किए? Here's the trick. Can anybody want to answer this question? Exactly, because Michael Jackson has a patent right for these shoes. That means कि Michael Jackson as a dancer, good. As an inventor, he has invented such kind of shoes और उसके लिए उन्होंने क्या लिया? Patent लिया. Now, as he acquired a patent for his shoes, क्या इस patented shoes को कोई यूज कर सकता है बिना इनकी परमिशन के? क्या इस पेटेंटेड शू को कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है बिना इनकी परमिशन के? नहीं. So next 20 years क्या हुआ? He is the only one who can dance like this. Clear? Am I clear or not? समझ में आ गया? Yeah, he is Hriteshwar Singh Bhatia. आप शायद जानते होंगे, ये भी राजस्थान से ही है. He is a 13-year-old boy जिन्होंने एक ऐसा चेस बनाया जिसको 6 प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं. Getting my point or not? Yes. This is an innovation. Patent is a different thing. Patent मिला है ना मिला, that's a different thing. But he innovated a chess board जिसमें 6 प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं. तो बेसिकली लास्ट दो जो एग्जांपल मैंने दिए हैं उनसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पेटेंट इज नॉट समथिंग फॉर साइंटिस्ट. ऐसा मत सोचिए कि पेटेंट्स कौन ले सकते हैं, केवल साइंटिस्ट या जिनके पास साइंटिफिक नॉलेज है वही ले सकते हैं. पेटेंट इज फॉर एनीवन हु हैज अ क्रिएटिव माइंड थॉट, हु हैज अ इनोवेटिव माइंडसेट. तो माइकल जैक्सन ही इज अ ग्रेट डांसर, लेकिन उन्होंने कुछ इनोवेट किया अपने शूज में एंड ही एक्वायर्ड अ पेटेंट फॉर द सेम. एंड ही इज अ 30-year बॉय जो स्कूल में पढ़ते हैं. अभी कोविड में इनका देहांत हो गया, बट ही इज अ 30-year बॉय जब उन्होंने इसके लिए फाइल किया, पेटेंट के लिए फाइल किया. तो बेसिकली इनके दिमाग में आइडिया आया कि चेस तो 2 लोग खेलते हैं, 3 लोग क्यों नहीं खेल सकते. तो इन्होंने चेस बोर्ड बनाया जिसमें 6 प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं. तो जब 13 साल का लड़का अगर पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है तो व्हाई नॉट वी आर इंजीनियर्स. हमारे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है एंड वी आर लाइक सम ऑफ यू एक्चुअली गोइंग टू स्टार्टअप एंड ऑल. तो आपको ये सारी चीजें जो इनोवेटिव माइंडसेट है वो आपको लाना पड़ेगा. और जो आपके प्रोजेक्ट मेजर माइनर जो भी हो रहे हैं, अगर उसमें आपको कुछ भी लगता है कि दैट प्रोजेक्ट हैव अ पोटेंशियल इन द मार्केट, so first go for patent, right? Am I right or wrong? यहाँ तक पेटेंट सबको समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन. अब मैं आपसे जानना चाहूंगा बेसिकली कि लाइक आपके दिमाग में कुछ आइडिया जो चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं कि इसको पेटेंट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए. आई जस्ट वांट टू नो कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा है तो प्लीज एक्सप्लेन, मतलब शेयर कीजिएगा उसको. Have you find out some technological problem जिस पे आप काम कर रहे हो? नहीं? Yes, I just want to ask you, what's your name?
आयुष, ओके आयुष। सो क्या बता सकते हैं कोई भी पेटेंट तो पहले कभी हुआ है? आई जस्ट वांट कि कोई एग्जांपल पेटेंट का। Prosthetic foot, great. Please give a huge round of applause for him. Yes, what's your name? Yeah. Yakshay. Lakshya. Wow, great. So Lakshya कोई एग्जांपल पेटेंट का? फाइनल ईयर, थर्ड ईयर। अभी माइनर मेजर कुछ मेजर के लिए प्लानिंग है? अभी प्लान नहीं किया, माइनर किया है, माइनर भी नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई रैंडम एग्जाम हो जो इस हॉल में दिख रहा हो पेटेंट का? करेक्ट प्लीज। देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल। पेन भी कभी ना कभी तो इन्वेंट हुआ होगा और उसको भी एक्सक्लूसिव राइट 20 इयर्स के लिए मिला होगा। 20 इयर्स के बाद ये पब्लिक डोमेन में आ गया। इलेक्ट्रिक बल्ब, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है किसी ना किसी टाइम पे क्या थी? पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी फॉर 20 इयर्स और उसके बाद अभी ये पब्लिक डोमेन है। ओके यस। सो नाउ अभी आपके दिमाग में सपोज लाइक कुछ लोग शेयर नहीं करना चाह रहे हैं बट कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होगा जिसको आप चाह रहे हैं कि इसको पेटेंट कराएं या नहीं कराएं। जैसे मैं भी सुन रहा था इसमें बच्चे बात कर रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन कोई कह रहा था। यस वो आप पूछिए। नहीं आपका ये क्वेश्चन था या डाउट था कि वो भी पेटेंट में आता है या नहीं आता है जैसे कोविशील्ड वैक्सीन है। ओके सो बिल्कुल सही है। आप उसके लिए कोई भी लाइक अगर आपने नया ड्रग डेवलप किया है देन यू कैन हैव अ पेटेंट फॉर द सेम। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि माइकल जैक्सन हु इज अ डांसर यदि वो पेटेंट करा सकते हैं, एक 13 साल का लड़का जो कि पैरालाइज्ड एक्चुअली he can apply for a patent, then why not we? तो आपको शाय नहीं होना है। आपके दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा है उसको पहले इवैल्यूएट करना है कि इस आइडिया के लिए मुझे पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हाउ वी कैन इवैल्यूएट बाय योरसेल्फ? So these are the 3 criteria actually. If you have any idea, these are the 3 criteria: novelty, inventive step and industrial applicability. यदि आपका थॉट, यदि आपका आइडिया, यदि आपका प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं वो ये 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता है, then you should apply for a patent. And I must say कि अगर वो इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता है in the view of government आपको पेटेंट मिल जाएगा। ओके तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल रहता है कि मेरा ये आइडिया है या मैं इस प्रोडक्ट को बनाने वाला हूँ या ये चीज इनोवेट करने वाला हूँ, इसके लिए मुझे पेटेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वी विल चेक these 3 क्राइटेरिया। इसको एक्सप्लेन करें। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज रेज योर हैंड, आई कैन सॉल्व द क्वेरी। ओके कोई दिक्कत नहीं है, बी कंफर्टेबल। मुझसे ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक 20 सेशन में भी आपको कोई भी डाउट है जस्ट रेज योर हैंड। ओके बस आपस में बात नहीं करनी। आई एम हियर टू टॉक टू यू एक्चुअली। तो कोई भी बात करनी है आप मुझसे कर लीजिए। सो इन 3 क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज नोवेलिटी। दैट मींस योर प्रोडक्ट शुड बी न्यू। द प्रोडक्ट व्हिच यू हैव डेवलप्ड शुड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। तो नोवेलिटी मींस आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो नया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपने कहीं से कॉपी कर लिया। फॉर एन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, एक छोटे से बच्चे ने पेटेंट फाइल किया था। ही इज 12 years old. व्हाट ही फाइल? उन्होंने एक ब्रश फाइल किया। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद टूथब्रश? कि बच्चे जो आपका टूथपेस्ट है वो ब्रश पे रखते समय स्प्लिट कर देते हैं। तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला कि टूथपेस्ट को ब्रश के अंदर कवर कर दिया और उन्होंने एक पिन लगाया जिसको पिन करने से लाइक उसको पुश करने से ये जो पेस्ट है वो कहां आ जाएगा? ब्रश पे आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो एक 12 साल के लड़के ने ये पेटेंट के लिए फाइल किया था। ओके सी दिस इज द इनोवेटिव थॉट। बेसिकली इसने इसके बारे में सोचा। नाउ
अब इसकी नोवेलिटी है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हमने पेटेंट फाइल किया। आई एज एग्जामिनर एग्जामिन दिस पेटेंट एप्लीकेशन। तो मैंने देखा कि क्या ये मार्केट में पहले से किसी का लॉन्च है, किसी दूसरी कंपनी ने इसको बना के मार्केट में लॉन्च किया है कि नहीं। तो देखा कि हाँ, एक कंपनी ने ये टूथब्रश पहले से बना रखा है। यू कैन सी द टूथब्रश। इसमें बीच में जो है इसमें पेस्ट कर रखा है दैट दस्तान, इसको पुश करेंगे तो जो पेस्ट है वो निकलकर यहाँ आ जाए। तो इस एप्लीकेशन को एक्चुअली मैंने रिजेक्ट किया कि इसमें नोवेलिटी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो नोवेलिटी मींस ऐसा नहीं आपकी इन्वेंशन कहीं से कॉपी पेस्ट, पीछे कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आ गया? ओके, नोवेलिटी समझ में आ गया? दैट मींस आप जो आइडिया सोच रहे हैं, जो सॉल्यूशन सोच रहे हैं, वो सॉल्यूशन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है जो मोस्ट ऑफ द बीटेक स्टूडेंट्स डू। आई बिलीव कि लाइक जो ACIIT है ये मुझे निराश नहीं करेगा, इनके अपने आइडियाज होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स व्हाट दे डू, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट। तो अगर आपका ऐसा आइडिया है तो आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर पेटेंट, क्योंकि पेटेंट एग्जामिनर के लिए ये पता करना सिर्फ 1 मिनट का काम होता है। यू विल फाइंड आउट इन जस्ट इन अ सेकंड, एक्चुअली इन 30 सेकंड ये हम पता कर लेंगे कि ये पहले से नहीं कॉपी, ये आपने ये जो इनोवेशन फाइल किया है ये कहीं से कॉपी किया है या नहीं किया। तो नोवेलिटी समझ में आ गया। सेकंड क्राइटेरिया इज इनोवेटिव स्टेप। इनोवेटिव स्टेप इज समथिंग दैट योर इनोवेशन शुड नॉट बी अ व्हाट वी कॉल एज अ जुगाड़। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बाइक का हेडलाइट निकाला, साइकिल में लगाया और फाइल कर दिया कि देखो ये मैंने इनोवेशन किया। दैट इज नॉट अ इनोवेशन एक्चुअली। ओके, इंडिया में इसको कहते हैं जुगाड़। So your application, like your invention, should not be a mere जुगाड़. It should have at least a technical advancement. Like I mentioned about charger. तो चार्जर तो पहले से भी था, आपने उस चार्जर में एक स्टेप आगे बढ़े, आपने उसमें चार्जिंग का जो टाइम है वो कम किया। Am I right or wrong? तो that is a technical advancement. तो आपके जो इनोवेशन है उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए। ओके, एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको मार्केट में लॉन्च कर पाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, पेटेंट का जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ लॉन्च करना है, मार्केट में। तो ये 3 क्राइटेरिया समझ में आ गए। अभी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज या as he prior said that the children is secondary to dress so डिजाइन तो रेडी किया था उसने, क्या उसने प्रोडक्ट बना के उसको दिखाया था या पहले डिजाइन रेडी करके वो बता देंगे ये पैटर्न हो सकता है, तो क्या आइडिया को पैटर्न निकाल सकता है। पहले इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, नो आइडिया इज टू स्मॉल। कोई आइडिया छोटा नहीं होता है, और खड़े होके ये क्वेश्चन करना या जवाब देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो पहले इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन किया। क्वेश्चन इनका बहुत सिंपल है कि लाइक मेरे दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, तो उस आइडिया के लिए मैं पहले किसी से कांटेक्ट करूं कि मुझे इसको फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रफली आइडिया, एग्जैक्टली। अब इसके लिए एक्चुअली एक लाइक जैसे लीगल सर्विसेज में जिसको हम एडवोकेट बोलते हैं, सभी एडवोकेट के बारे में जानते हैं। हमें कुछ भी लीगल हेल्प चाहिए होती है तो हम सीधे हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाते हैं, हम किसके पास जाते हैं, एडवोकेट के पास जाते हैं। सिमिलरली जो आईपीआर फील्ड है, आईपीआर में एक्चुअली होते हैं पेटेंट एजेंट्स। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प जैसे कि पेटेंटेबिलिटी रिपोर्ट चाहिए तो आपको उनके पास जाना होता है। दे कैन गाइड यू एक्चुअली कि आपके इन्वेंशंस में क्या क्या लेके हैं। ओके, कोई डाउट या जैसे हम कभी कोई एलिमेंट की डिजाइन वगैरह करते हैं तो उसका हम पेटेंट करवा लेते हैं, बट कोई कस्टमर होता है या फिर कोई डिजाइनर होता है उसको वही पेटेंट चाहिए होता है तो उसको कॉपीराइट कर लेकर उसका यूज करता है। सर ये पेटेंट के लिए प्रॉपर्टी कैसे चाहिए भी यूनिक कैसे रखा? करेक्ट। फर्स्ट गिव अस न्यू राउंड। ओके, एक्चुअली उन्होंने गर्ल्स की तरफ से अपना रिप्रेजेंटेशन रखा है कि बॉयज क्वेश्चन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट गर्ल्स। सो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि लाइक हमने इतने सारे ये पेटेंट्स हम पढ़ रहे हैं, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद कोई कॉपी कर लेता है लोकल मार्केट में, तो
फिर क्या मतलब निकला? आपने कोई भी लाइक इनोवेशन किया, इनोवेशन को मार्केट में लॉन्च किया और कोई इसका कॉपी करके लोकल सेल कर रहा है, तो क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम नाइकी का शू यूज करते हैं, राइट? आप मार्केट में देखेंगे बहुत सारे उसके डुप्लीकेट कॉपी भी सेल होते हैं, हमारा राइट हो? कोई उसको हाईटी करके बेच देता है, कोई दूसरा नाम करके बेच देता है। तो उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। जस्ट इसके बाद मेरी स्लाइड्स आएंगी डिजाइन और ट्रेडमार्क की, तो हम उसको डिस्कस बिल्कुल करेंगे, है ना? और उसका क्या इम्पैक्ट होगा मैं वो भी डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है? तो अभी ये पेटेंट के बारे में कोई डाउट हो तो बताइए, मैं सेकंड आईपीआर पे जाऊं। अच्छा, कोई इंटरेस्टेड है पेटेंट फाइलिंग के बारे में जानने के लिए, लाइक हाउ आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है और आपको लग रहा है कि उसमें ये 3 क्राइटेरिया हैं, तो मुझे बताइए, मैं आपको बता सकता हूं हाउ यू कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ। जानना है? वेरी नाइस, नेक्स्ट। ओके, अब हम पेटेंट फाइलिंग के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग आई मस्ट से कि आप जो भी पेटेंट फाइल करेंगे, मोस्ट पॉसिबिलिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सर से कंफर्म करता हूं, जो भी आपकी फी रहेगी एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट क्लियर करेगा, करेक्ट? तो आपकी जो फी की लायबिलिटी है वो आपके ऊपर नहीं आएगी, ये इंस्टीट्यूशंस की आईपी पॉलिसी होती है। तो हम ये बात करते हैं कि अभी फाइल कैसे करना है। तो अगर आप अपने आप से फाइल करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, अपनी इन्वेंशन को लिखिए, ओके? आपको इन्वेंशन का मॉडल नहीं देना है पेटेंट ऑफिस को, यू हैव टू डिस्क्राइब योर इन्वेंशन इन वर्ड्स, ओके? तो आपने 2, 3, 4 पेज इन्वेंशन के बारे में लिखना है, ओके? जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसको समरी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होगा, एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होगा जिसमें आप डिस्क्राइब करेंगे, कुछ ड्राइंग्स होंगी और लास्ट में क्लेम्स होंगे, ओके? ये 4 पार्ट होते हैं एक्चुअली आपकी इन्वेंशंस के। आपको वो इन्वेंशंस एप्रोप्रिएट पेटेंट ऑफिस यानी दिल्ली पेटेंट ऑफिस में जाके फिजिकली फाइल कर सकते हैं, ओके? अब आप कहेंगे यार मैं रहता हूँ राजस्थान में, जयपुर में, यहाँ से फिजिकल फाइल करने दिल्ली जाऊंगा, वापस आऊंगा, काफी टाइम टेकिंग है और ऊपर से टिकट वगैरह का खर्चा भी होगा। तो हियर इज द सेकंड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर ऑनलाइन फाइलिंग, जस्ट सिटिंग एट योर होम, जस्ट लॉग इन ऑन द वेबसाइट दैट इज ipindia.online.gov.in। इस पे आपको क्या करना है? लॉग इन करना है, एक अकाउंट बनाना है, लॉग इन करना है और अपनी इन्वेंशन को सबमिट करना है विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स। वंस यू डू दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड वाला सक्सेसफुली मैसेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सो द फाइलिंग इज वेरी सिंपल, ओके? ऑल्दो ये अभी रिसेंट टाइम में हुआ है। सो हियर इज द फॉर्म, आपको कौन-कौन से फॉर्म भरने हैं मैंने बताया कि आप जो इन्वेंशन डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ड्स में, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक पेज का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यानी यू हैव टू डिस्क्राइब योर इन्वेंशन एज अ होल, ड्राइंग्स होना चाहिए, कुछ इमेजेस उसकी, एंड क्लेम्स। क्लेम्स मींस जो आपका इन्वेंशन, जो कोर इन्वेंशन है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे वर्ड्स में, दैट इज क्लेम्स। तो ये आपको अटैच करना है फॉर्म 2 के साथ। फॉर्म 1 होता है जिसमें हम आपका नाम पूछते हैं, आपका एड्रेस पूछते हैं, इंस्टीट्यूशंस का नाम पूछते हैं और राइट्स किसको असाइन होंगे, कितने % असाइन होंगे, रॉयल्टी अगर मिलेगी तो किसको कितनी % मिलेगी, दैट वी विल आस्क इन फॉर्म 1। एंड फॉर्म 18 इज फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर्म 5 इज अ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक पेज का डिक्लेरेशन फॉर्म है कि ये आपने कहीं से कॉपी नहीं किया, दैट इज योर ओन इन्वेंशन। So these are the form 1, form 2, form 5, 18. So simple. Okay. Now, in the year 2021, government has given some like relaxation for educational institute. We have given 80% rebate in fees. So that is a huge decision from the government, and additional 10% for online filing. So earlier it was like 28,000. For a patent to file in India, but now after like 80% reduction, it has been reduced to 5,600. और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ये 5,600 you need not to pay, the college will clear this. Okay? तो आपका जो इनोवेशन है, जो भी आप मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट जो भी करने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि उस प्रोजेक्ट में वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, नोवेलिटी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, तो आपको उसमें क्या फाइल करना चाहिए? पेटेंट फाइल करना चाहिए। एंड बिलीव मी कि अगर आप अपने रिज्यूमे और सीवी में मेंशन करेंगे कि यू हैव फाइल अ पेटेंट, तो वो एक अपने आप एक इंपैक्टफुल रिजल्ट लेके आएगा इंटरव्यू में, ओके? तो व्हाट आई सपोज कि 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस 1 घंटे का आपका यूज आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। दिस इज माई होप, होपफुली आप इसको पूरा भी करेंगे।
ओके, सो आप ऐसे जैसे कि मैंने बताया कुछ लोग फाइनल ईयर में हैं और उनका 1 साल में बीटेक खत्म हो जाएगा, व्हाट दे वांट कि उनका पेटेंट एप्लीकेशन जल्दी से हो जाए, उनका पेटेंट जल्दी हो जाए, दे नीड नॉट टू वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम 2 years or 3 years. तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन एडिशनली फाइल दिस फॉर्म 9. दिस इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर्म. यदि आपको पेटेंट एप्लीकेशन को पब्लिश कराना है विद इन अ मंथ, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी है कि यार मेरे पास अभी बीटेक खत्म होने में 6 महीने या 1 महीना या फिर 1 साल बचा है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस फॉर्म विद अ फी ऑफ 2500. अगर आपने ये फी और ये फॉर्म आपने सबमिट किया तो आपका जो पेटेंट एप्लीकेशन है कितने टाइम में पब्लिश हो जाएगा, कितने टाइम में पब्लिश हो जाएगा, 1 month. तो पहले ये होता था कि पीएचडी स्कॉलर्स और एमटेक और लाइक साइंटिस्ट वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे कि हम आज पेटेंट फाइल करते हैं और वो पब्लिश हो जाए 3 साल बाद, ऐसे कैसे काम चलेगा, तब तक तो मेरा पीएचडी ही हो जाएगा. सो नाउ दे कैन नॉट आर्ग्यू ऑन दैट. वी हैव अ स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टूडेंट्स एक्चुअली. Second is expedited examination. You want to examine your patent in a very short period of time, that is ordinary 1 month. तो अगर आपको 1 महीने के अंदर उसको एग्जामिन करके विद इन 6 month पेटेंट चाहिए तो आपको फॉर्म 9 भी फाइल करना चाहिए और फॉर्म 18A भी फाइल करना चाहिए. ये एडिशनल फीस लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, बट यू विल हैव अ सॉलिड कॉन्क्रीट आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस कि आपको पेटेंट मिला है या रिजेक्ट हुआ है. ओके, जो रिजल्ट होगा वो आपका बहुत जल्दी आपके सामने होगा और मोस्ट प्रोबेबली विद इन 6 months यू हैव अ रिजल्ट, ईदर यू गॉट अ पेटेंट और रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. यदि आपके वो 3 कंस्ट्रेंट सही है, नोवेलिटी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, आई कैन से एंड से, बिकॉज़ कि अगर आपके इन्वेंशन में वो 3 चीजें हैं तो आपको पेटेंट मिल जाएगा. ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सिर्फ कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं. आई एक्सप्लेन. फर्स्ट इज फर्स्ट फाइल एंड पब्लिश. क्या है, मैंने देखा है कई सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली, व्हेन दे कम टू लाइक इनोवेट समथिंग और उन्होंने कुछ बना लिया होता है, उनका मेजर प्रोजेक्ट जो है लोग एप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट तुमने अच्छा किया है, ये किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किया है. तो सबसे पहले वो पता है क्या करते हैं, सबसे पहले वो जाते हैं न्यूज़पेपर वाले के पास और कहते हैं मेरा फोटो लो और कल के अखबार में छाप दो. हमें राइट कर रहा हूं, हम क्या चाहते हैं, पब्लिसिटी. एग्जैक्टली, क्या उससे हमें पैसा मिला? नहीं, वी जस्ट गॉट अ पब्लिसिटी एक्चुअली. लेकिन उस पब्लिसिटी करने से जो हमारा पहला क्राइटेरिया था नोवेलिटी का, वी लूज दैट. मैंने बताया था कि कोई भी एप्लीकेशन इंडिया में अगर पेटेंट के लिए फाइल होती है तो वी चेक फर्स्ट, व्हाट वी चेक, नोवेलिटी, कि आपका इन्वेंशन पहले कहीं डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए. और आपने वो डिस्क्लोज कहां कर दिया, न्यूज़पेपर में, जस्ट फॉर पब्लिसिटी. तो आपको वो राइट जो है पेटेंट का फिर क्वेश्चन मार्क होता है. ओके, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए? एवरीबॉडी वांट द पब्लिसिटी, राइट और नो? तो आपको क्या करना है, आपको उस प्रोडक्ट का पहले क्या फाइल करना है, पेटेंट फाइल करना है. वंस यू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन, उसके बाद आप चाहे एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करें या 50 न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं, जो आपका इनोवेशन है, इफ यू फाउंड कि ये इनोवेशन में दम है कुछ, तो आपको उसको सबसे पहले क्या फाइल करना चाहिए, पेटेंट फाइल करना चाहिए. वंस यू फाइल अ पेटेंट, और उसके बाद फिर आप पब्लिसिटी के लिए जो भी है आपको रिसर्च पेपर में पब्लिश करना है और एप्रिशिएशन या फिर आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, वो फिर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. दैट्स अ फर्स्ट मिस्टेक जनरली स्टूडेंट. सेकंड इज द टेरिटोरियल राइट. मैंने बताया कि आपके अगर इन्वेंशन का जो आपको स्कोप दिख रहा है वो इंडिया से बाहर भी दिख रहा है तो आपको वहां भी फाइल कर लेना चाहिए. सेकंड, आपकी इन्वेंशन इन दोनों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. इफ योर इन्वेंशन इज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड अ पेटेंट फॉर दिस. कि आप चाहें कि एक बॉम्ब बनाएं और आपको पेटेंट मिल जाए, यू विल नॉट हैव अ पेटेंट फॉर दिस. am I right or no? ओके, तो आपका पेटेंट एक्चुअली डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. और एक होता है सेक्शन 3, इसको भी चेक कर लेना है कि आपका जो पेटेंट है वो सेक्शन 3 में तो नहीं जा रहा है. अगर इसमें गया तो भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा. सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3 में हमने कुछ लिस्ट कर रखे हैं. जैसे सबसे पहला है फ्रिवलेस और कॉन्ट्राडिक्टिंग वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ. सपोज करो आप एक ऐसी मशीन क्लेम कर रहे हैं जो कंटीन्यूअसली एनर्जी दे. इज इट पॉसिबल? नो, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
तो आप कोई ऐसी इन्वेंशन अगर क्लेम करते हैं जो फंडामेंटल लॉ के अगेंस्ट में है, तो वो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। सिमिलरली लाइक सिगरेट, एक इनोवेटिव सिगरेट बनाते हैं, तो आपको पेटेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ओके, सो ये बहुत फंडामेंटल चीज है जो आपको खुद से समझ में आ जाएंगे कि आपको इनके लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने कोई म्यूजिक बनाया या सॉफ्टवेयर का कोई प्रोग्राम किया, तो उसके लिए पेटेंट नहीं, उसके लिए दूसरे आईपी आता है। ओके, यस, इट्स अबाउट पेटेंट। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज आई विल नॉट हियर टू आंसर दिस क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में बाद में डाउट आता है। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पहले इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। व्हाट ही इज आस्किंग कि मैंने इंडिया में पेटेंट ले लिया, अब मुझे सपोज करो मैंने वो चार्जर ही डेवलप किया। अब चार्जर का मार्केट तो सिर्फ यूएसए थोड़ी ना है, यूएसए है, चाइना है, जापान है, सारी कंट्रीज में मैं तो सेल कर सकता हूँ उस प्रोडक्ट को। ओके, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे एक बार पेटेंट लेके सभी हो जाए? तो इसका आंसर एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल है कि इंटरनेशनल पेटेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। फर्स्ट ये दिमाग में, इट्स अ टेरिटोरियल राइट, दैट मींस आपको इंडिविजुअल कंट्री में राइट लेने पड़ेंगे। हम राइट हो? अब इंडिविजुअल कंट्री में राइट लेने के लिए इंडिविजुअल एप्लीकेशन, मतलब इंडिविजुअल कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है वाइपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वो आपको हेल्प कर सकती है। वो आपको क्या कहेगी कि आपने इंडिया में फाइल कर दिया, ग्रेट, अब आप क्या कीजिए, हम आपको 31 मंथ का टाइम दे रहे हैं, आपको जिन जिन कंट्री में फाइल करना है आपसे हमें बता दीजिए, हम डायरेक्ट फाइल कर देंगे। समझ गए? तो बेसिकली उन्होंने क्या करके प्रोसीजर को सिंपल कर दिया कि आपने इंडिया में फाइल किया, उसके बाद हमें लिस्ट दे दो जिस कंट्री में फाइल करना है, हम फाइल करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपके बाद में उन कंट्री से जो है पेटेंट ले लीजिएगा, लेकिन पेटेंट आपको इंडिविजुअल कंट्री से ही मिलेगा। ओके, तो दैट इज जिसको हम कहते हैं पीसीटी एप्लीकेशन एक्चुअली। सो पेटेंट के बारे में अगर डाउट होता है तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। यस, अगर पेटेंट रिजेक्ट हो जाता है फिर Yes. अगर जैसे आप चेक किया आपने तो आपको कोई सिमिलर काम नहीं मिला, जब आप चेक करते हो आपको कोई सिमिलर मिलता है और रिजेक्ट हो जाता है, तो इनका कहना है कि आपने जैसे कि सपोज करो चार्जर बनाया, अब चार्जर हो सकता है कि अगर पहले किसी ने नहीं बनाया है तो आपको पेटेंट मिल जाएगा, पर सपोज करो सैमसंग ने पहले से ही इसके राइट लेके रखे हैं, तो आपका पेटेंट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पेटेंट रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपका उसमें कोई राइट नहीं रहता। जो आपने पेटेंट फाइल किया है वो भी अब दुनिया को दिख जाता है कि भाई किसी ने लाइक इस चार्जर के लिए फाइल किया था और ये पेटेंट जो है रिजेक्ट हो गया, दैट मींस किसी के पास इसके पहले से राइट। तो अगर आपका पेटेंट रिजेक्ट हो गया दैट मींस फुल स्टॉप। आप उसको जो है यूज करने के लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वो उसके राइट्स एक्चुअली किसके पास है। समझ में आया? और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी के पास राइट्स ना हो, वो पब्लिक डोमेन में हो, जैसे कि किसी ने चार्जर बनाया और न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपने फाइल किया, तब भी आपका पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में आ चुका है और उसको कोई भी यूज कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट पेटेंट। नाउ इंडस्ट्रियल डिजाइन, सेकंड आइडिया। ओके, मेरा फिर से क्वेश्चन, क्या इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इट्स अ कोका कोला बोतल, ग्रेट। क्या आप इस फोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इट्स अ आईफोन। ओके, हमने इस मॉडल को आइडेंटिफाई कैसे कर लिया जबकि मैंने इसमें कोका कोला को तो छुपा रखा है? How you will able to identify this bottle कि ये बॉटल किसकी है? कोका कोला की है। Yes, because इस टाइप की बॉटल केवल कौन मैन्युफैक्चर करता है? कोका कोला। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इस टाइप की बॉटल सिर्फ कोका कोला ही मैन्युफैक्चर क्यों करता है, पेप्सी क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज पेटेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है।
बिकॉज कोका कोला हैज इंडस्ट्रियल डिजाइन फॉर द बॉटल। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्चुअली कुछ नहीं होता, आपका जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। फिजिकल अपीयरेंस समझते, आउटर लुक कैसा है, उसका ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट क्या है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। समझ गए? तो कोका कोला ने ये बॉटल बनाई, पर इस बॉटल का ले लिया डिजाइन। जैसे ही इसको डिजाइन मिल गया, क्या इस तरह की दिखने वाली बॉटल कोई और बना सकता है? नहीं। फिर उन्होंने बॉटल की ब्रांडिंग की, दैट्स व्हाई नो। एप्पल, क्या वीवो और सैमसंग और दूसरी कंपनियां ऐसा फोन बना सकती है जो ऐसा दिखता हो? अंदर की टेक्नोलॉजी टोटल डिफरेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी पार्ट। टेक्नोलॉजी इसमें जो अंदर जो भी है वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। मैं सिर्फ ऐसा बता रहा हूं कि कोई टॉय भी ऐसा बना सकता है क्या जो ऐसा दिख रहा हो, ऐसा पीछे से और ऐसा आगे से? क्या बना सकता है? नहीं बना सकता। Even a toy making company cannot copy the design of the phone. Reason? Apple has a design right for the sensor. इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने पेटेंट कराई है, और इसका जो आउटर लुक है, जो इसका देखने का जो फिजिकल लुक है, जो इसका आउटर लुक है, जो इसका ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट है, जो इसका फिजिकल अपीयरेंस है, उसका उन्होंने क्या ले रखा है? डिजाइन ले रखा है। कोई डाउट? अभी आते हैं हम डिजाइन पे। तो अभी आपने क्या किया कि स्पेसिफिक तरीके की चेयर डिजाइन की। इसमें कोई पेटेंट, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है, कोई फंक्शनल पार्ट नहीं है। आपने कोई रैंडम चीज डेवलप की, लाइक ये डेवलप किया, इस तरह की बाइक डेवलप की, या आपने एक स्पेसिफिक तरीके की चेयर डेवलप की, और आप चाहते हैं कि इस तरीके का डिजाइन या इस तरीके की चेयर कोई भी मैन्युफैक्चर ना कर पाए, तो आपको इसके लिए क्या लेना है? सिर्फ डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन गाइडलाइन। ओके, आपको इसके लिए पेटेंट मिलेगा क्या? नहीं, बिकॉज इसमें कोई टेक्नोलॉजी है क्या? नहीं। लेकिन इसका आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन मिलेगा। दैट मींस once you got a design right, nobody can copy your creation. आपने जो डिजाइन की है चेयर, इस चेयर को सिमिलरली कोई नहीं बना सकता। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट, ये प्रोटेक्शन चाहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है उसके अपीयरेंस को कोई कॉपी ना कर ले, तो आप क्या लेंगे? डिजाइन राइट लेंगे। समझ में आ गया होगा? नाउ मैं आंसर उनके क्वेश्चंस पे आता हूं। सीएस आस्क्ड मी क्वेश्चंस की लाइक मनीष मल्होत्रा ने कोई लहंगा डिजाइन किया और उन्होंने उसकी कॉस्ट रखी है अराउंड लाइक फॉर एग्जांपल क्या ले, तो मनीष मल्होत्रा बॉलीवुड के लिए लाइक डिजाइन करते हैं, ओके, और उन्होंने डिजाइन किया लहंगा। हम इसको करोड़ में जाके कितने का खरीद देते हैं? 10,000, 20,000, 30,000। तो एक्चुअली क्या होता है, मनीष मल्होत्रा जब भी कोई लहंगा डिजाइन करते हैं, दे अप्लाई फॉर अ डिजाइन राइट कि ये लहंगा कोई कॉपी ना करे। एंड द प्रैक्टिकल इज कि उस लहंगे का डिजाइन कोई भी बड़ी कंपनी कॉपी नहीं करती। अगर आप उनके लहंगे की कॉपी खरीदते, पहनते या फिर मैन्युफैक्चर करते हुए पकड़े जाते हैं और मनीष मल्होत्रा आपके अगेंस्ट केस करते हैं, तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। हेयर द क्वेश्चन कि मनीष मल्होत्रा आप पे केस क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली, द फर्स्ट थिंग कि उनका जो कॉपी होता है इससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। एंड सेकंड थिंग, आपने वो लहंगा बना लिया 10,000 में, सपोज करो वो आप पे केस भी करते हैं, तो आपसे रॉयल्टी का डिमांड कितना करेंगे? 50%, 5,000 रुपए। तो क्या 5,000 के लिए वो आपका केस फाइल करते हैं? नहीं। But definitely, if you want to start a company, if you want to start a startup, और आप उस स्टार्टअप में कहते हैं कि हम मनीष मल्होत्रा के कॉपी किए हुए डिजाइन आपको 10,000 में देते हैं, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? Then you will be in trouble. अगर आप अपने लाइक इस छोटे से काम को बड़े स्केल पर जैसे ले जाने वाले होंगे, आपके अगेंस्ट में तुरंत कोई ना कोई केस डेफिनेटली फाइल होगा। ठीक है? सो हियर इज द रीजन कि स्टार्टअप ग्रो क्यों नहीं हो पाते। स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं बहुत छोटी सी चीज से, लेकिन आगे जाके उनको आईपीआर अगर उनके पास नहीं है तो कोई ना कोई उनके अगेंस्ट केस फाइल करता है और उसके बाद वो स्टार्टअप फेल्स। सो हियर इज माय सजेशन कि अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं तो फर्स्ट एक्वायर अ पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिजाइन।
क्योंकि अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट ले लिया और उसके बाद आप स्टार्टअप स्टार्ट करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दे रहे हो, क्या आपके खिलाफ कोई केस फाइल करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि आप उन्हें क्या दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज गिवन मी द राइट दैट देयर इज अ पेटेंट और मैं इसको मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। आपको केस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कीजिए। am I right or wrong? You will be safe. Doubt? सिमिलरली अगर आपने पेन इस तरीके का डिजाइन किया है या लाइट लैंप आपने इस तरीके का डिजाइन किया है, पर्स आपने इस तरीके का डिजाइन किया है, वॉच आपने इस तरीके की डिजाइन की है, तो अगर आपको इसका डिजाइन राइट मिल गया तो क्या कोई कंपनी इसको बना सकती है क्या? दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन किस इंडस्ट्रीज में बहुत पॉपुलर है? लाइक आई मेंशन फैशन इंडस्ट्रीज, हरीश मल्होत्रा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हर एक प्रोडक्ट एक्चुअली डिजाइनर प्रोडक्ट जो होता है उसका डिजाइनर प्रोडक्ट बोलते ही तभी है जब उसके पास डिजाइन राइट होता है। सिमिलरली है ज्वेलरी इंडस्ट्री, अगर ये इयररिंग आपको तनिष्क पे मिलेंगे तो क्या कोई दूसरा ज्वेलर इसको बना सकता है क्या? नहीं, क्योंकि तनिष्क कोई भी लाइक ज्वेलरी को मार्केट में लॉन्च करने से पहले क्या देता है? डिजाइन राइट देता है। समझ गए? तो कोई भी ज्वेलर जो ज्वेलरी डिजाइन करता है फर्स्ट ही रिक्वायर डिजाइन राइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, और उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन मिल जाएगा उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा मार्केट में। क्या मार्केट में उसको कोई कॉपी करेगा? नहीं कर सकता। हमें क्लियर है? सिमिलरली हमने ये नटराज की पेंसिल देखी होगी, क्या किसी और एक तरफ हम उनको इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप R&D कीजिए, प्रमोट कीजिए, इनोवेशन वाला कल्चर कीजिए, और दूसरी तरफ हमें पब्लिक का भी ध्यान रखना है कि वो सफर ना करें। दैट्स व्हाई इंटरनेशनल लेवल पे एक्चुअली 20 इयर्स फिक्स किया गया। दैट इज नॉट अ इंडियन प्रैक्टिस। जो लाइक मेजॉरिटी कंट्री है वर्ल्ड की वो इसी प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं। द पेटेंट इज फॉर 20 इयर्स। ओके, सो नेक्स्ट आईपीआर इज ट्रेडमार्क। पेटेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ट्रेडमार्क। हियर इज अनदर क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन। या क्वेश्चन सर जैसे कि सर फरारी फर्स्ट गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। फरारी BMW ये सब कार है, तो इससे बड़े डिजाइन का राइट होगा 10 तो वो तो सर राइट बंदा बोलिए। तो अभी अगर हम लोग चाहे फरारी कार डिजाइन कर सकते हैं क्या? मतलब अभी अगर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी ठीक, मैं आंसर देता हूँ इसका। इनका कहना है लाइक मेरे पास Hyundai क्रेटा है, मैंने क्रेटा परचेज किया, तो क्रेटा का डिजाइन सपोज करो 2010 में लॉन्च हुआ। एग्जांपल लेते हैं 2010 में Hyundai ने क्रेटा गाड़ी लॉन्च किया। ओके, उनको जो प्रोटेक्शन मिला होगा डिजाइन राइट के लिए मैक्सिमम कितना मिला होगा? 15 साल के लिए। क्या 15 साल बाद दूसरी कंपनी एग्जैक्टली वही लुकिंग की कंपनी बना सकती है या नहीं? सो द फर्स्ट थिंग कि डिजाइन राइट खत्म हो गया, तो डिजाइन राइट में तो वो आगे बच जाएगा, क्या दूसरे आईपीआर में बचेगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। वो भी सर उसका जैसे टेन्योर होता है वो भी खत्म हो सकता है। हाँ, तो सर अगर मान लो सर अभी जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बैठ कीजिए, वी आर स्टार्टिंग द थर्ड आईपीआर दैट इज ट्रेडमार्क। इसके बस में बाकी सारी चीजें बाद में डिस्कस करूंगा, केवल एक चीज पहले डिस्कस कर देता हूं कि द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क इज एंडलेस। होपफुली नाउ यू तो कुछ आईपीआर है। फॉर एग्जांपल पेटेंट के लिए हमने 20 इयर्स देखा, डिजाइन के लिए हमने मैक्सिमम 15 इयर्स देखा, लेकिन ट्रेडमार्क के लिए इट इज एंडलेस। यू हैव टू रिन्यू इट ईच और एवरी 10 इयर्स। ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। या सो नाउ डिस्कस अबाउट ट्रेडमार्क। सपोज आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू young man. Yes, what's your name? Specs. Yeah, what's your name? Samart Parikh. Yeah. Samart ji, suppose you have a craving for pizza. Which company you opt for? Like, किसका pizza मंगाएंगे? Yeah, everybody is answering. Domino's, great. और Pizza Hut. These two are the companies actually. तो हम अगर हमें पिज्जा खाने का मन करेगा, we will go for Pizza Hut and Domino's. Why? Because we have a trust in these companies regarding quality. कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें
पहले यूज किया है, पसंद आया, दोबारा भी हमें उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। Am I right or wrong? So we simply identify the company by this logo, by this sign. For an example, ये एक sign है. That is a sign of. That is a sign of. We just looking at the sign, we can identify the name of company. Am I right or wrong? So that is the beauty. कि आपने just एक picture देखी. For an example, you go for a shopping and you just see the logo of Louis Philippe. तो आपको समझ में आ जाएगा the quality of the shirt is good. For an example, you go for purchase a mobile phone. आपको सिर्फ ये logo दिखेगा, आप कहेंगे नहीं इस product की जो quality है that is वाजिब. Okay. तो आप सिर्फ एक logo, एक sign, एक word देख के आप पूरी कंपनी का जो ट्रस्ट है वो एक्वायर कर लेते हैं. सो दैट साइन, दैट लोगो इज अ ट्रेडमार्क. समझ रहे हैं? कंपनी एक बड़ा एम्पायर खड़ा करती है, फिर उसका एक छोटा सा सिंबल बनाती है और उस सिंबल से अपनी पूरी कंपनी को सिंबलाइज करती है. सो दैट कि आप उस कंपनी की हिस्ट्री ना पढ़ें, केवल वो साइन देख के आप परचेस कर लें कि हाँ कंपनी इज गुड. अदरवाइज कोई नई कंपनी आपके सामने आएगी, यू हैव टू स्टडी all the parameters to go for that company. Am I right or wrong? So trademark is nothing. Trademark is just a sign, just an image by which you can understand the company, the name of the company, the brand of the company, the image of the company. Am I right or wrong? Similarly, ये जो trademark है ये किसका है? That is Mastercard. That is great. That is Chase. Great. Wow. That is Target Incorporation. USA company. Okay, great. Please give a big round of applause for him. That is okay. So just looking at the logo, we identify the name of company, the image of the company. Am I right or wrong? Now. अब मैं ये ट्रेडमार्क पढ़ा कि हम सपोज करो आपने चार्जर या कोई टेक्नोलॉजी बनाई, आपने स्टार्टअप किया, एक स्टार्टअप जो है स्टार्ट किया, अपना पेटेंटेड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया. जब आप अपना पेटेंटेड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, डेफिनेटली जो कस्टमर उसको बाय करेंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है. तो आप अपनी उस कंपनी का एक ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आप उस कंपनी के नाम से अगर दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो जो पहले वाले कस्टमर है वो आपको पहचाने और तुरंत उसको परचेस कर दें. सो आपको क्या करना पड़ेगा? उस स्टार्टअप या उस कंपनी को एस्टैब्लिश करने के बाद आपको एक ऐसा साइन ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा लोगो ढूंढना पड़ेगा कि उस लोगो से जो कस्टमर है वो आपको पहचाने. दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ट्रेडमार्क. राइट? सिंपल. अगर आपके दिमाग में कोई थॉट है तो फर्स्ट आपको उसको एनालाइज करना है, फिर पेटेंट फाइल करना है. वंस यू गॉट अ पेटेंट, आप उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे और उसका जो एस्थेटिक लुक है वो भी कोई कॉपी ना कर पाए, इसके लिए आप डिजाइन राइट लेंगे और फिर आप अपनी कंपनी की जो इमेज अच्छी है उसको कैप्चर करने के लिए आप एक लोगो डिजाइन करेंगे और उसको हम ट्रेडमार्क करेंगे. पीछे कीजिएगा. तो ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है. आप ऐसे अल्फाबेट्स भी करा सकते हैं, आप कोई भी पिक्चर्स करा सकते हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट मार्क, कोई जनरल मार्क है वो भी ट्रेडमार्क करा सकते हैं. ट्रेडमार्क आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप लोगों को कैसे डिजाइन करना चाहते हैं. इट कैन बी लाइक सिंपल अल्फाबेट्स. ओके. Yes, that's a very good question. Please give a big round of applause. So that is a very intellectual question, I must say. क्योंकि ये I was not expecting from the students कि इस तरह का क्वेश्चन था. इनका क्वेश्चन समझने की कोशिश करना. आप बीटेक में 4 साल के लिए हैं, आपने कोई इनोवेशन किया, उसका पेटेंट लिया. आई एम सेइंग कि पेटेंट किसके नाम से जा रहा है? इंस्टीट्यूट के नाम से. am I right? फी कौन बियर कर रहा है? इंस्टीट्यूट. ग्रेट. यहाँ तक आपको पता है. ग्रेट. इसके अलावा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फॉर्म का साइन करते हैं. राइट? एडमिशन फॉर्म के साथ आपको एक कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है. राइट? उस प्रॉस्पेक्टस को ध्यान से पढ़िए. उसमें एक लाइन मेंशन होती है अबाउट आईपी पॉलिसी. हर एक इंस्टीट्यूशन के पास एक आईपी पॉलिसी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी. उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि आपने कोई इन्वेंशन फाइल की. ओके.
उसका आपको पेटेंट मिला, अब आप उसको कॉमर्शलाइज कर रहे हैं, दैट मींस यू वांट टू लॉन्च इन द मार्केट। अब वहां से कुछ प्रॉफिट आता है तो वो कैसे शेयर होगा कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच में, वो आईटी पॉलिसी में पहले से मेंशन होता है। तो यहाँ इस कॉलेज में जो भी आईपीआर को देख रहा होगा आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं अभी रिसेंटली विजिट किया हूँ जिस इंस्टीट्यूट में जो बेस्ट प्रैक्टिस है मैं वो बता देता हूँ आपको। अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2 दिन पहले मैं देशभक्ति यूनिवर्सिटी में था, वहाँ चांसलर जो थे उनके साथ एक फ्रेंडली डिस्कशन हो रहा था। वहाँ मुझे पता चला कि दे वांट टू प्रमोट द इनोवेशंस, कि स्टूडेंट्स की तरफ से इनोवेशंस आए, पेटेंट्स आए, बस हम कॉलेज में ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन से ये पेटेंट्स आए। वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं कि 2 चीजें हैं आपके सामने, स्टूडेंट्स के पास पेटेंट आ गया, दैट्स वेरी गुड। अब उस पेटेंट को जब हम कॉमर्शियली यूज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि उस कॉमर्शियल यूज के लिए फर्स्ट स्टेप कौन ले रहा है, कॉलेज उसको यूज करना चाह रहा है या आप किसी से टाई अप करके यूज करना चाह रहे हैं। अगर कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन उसको अगर कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है तो वो आपके साथ पहले आपको बिठाएगा, थर्ड पार्टी से मीटिंग करते समय आपका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा, और जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो केवल थर्ड पार्टी और कॉलेज के बीच में ना होते हुए थर्ड पार्टी कॉलेज और आपके बीच में होगा। ओके, यदि आप उस पेटेंट को यूज करते हुए मार्केट में लॉन्च करता है तो फिर आपका और इंस्टीट्यूशनल का एक लीगल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, जनरली एक्चुअली ये होता है कि इंस्टीट्यूट इज हैप्पी विद 30% और 20% और जो रिमेनिंग है वो आपका रहता है। हाँ, या यू कैन एक्वायर अ पेटेंट बाय वन ईयर, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कई सारे इंस्टीट्यूट एक्चुअली जो पेटेंट को फाइल करते समय फी ली है आप उस फी को रिटर्न करेंगे, बाकी आप उसको फुली एक्सप्लॉइट करेंगे तभी उनको वही करेंगे। दैट इज रिटन इन आईपी पॉलिसी। आपको इंस्टीट्यूट की आईपी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी। अगेन आई मस्ट सजेस्ट कि आपका जो रूट होना चाहिए वो इंस्टीट्यूशनली होना चाहिए, दैट मीन्स यू शुड गो फॉर इंस्टीट्यूट। रीजन मीन आप यहाँ 4 साल पढ़ते हैं, आपको जो फैसिलिटी अवेल कराएगा वो इंस्टीट्यूट कराएगा। आप अपने लेवल का R&D इतना नहीं कर सकते क्योंकि काफी सारा डाटा चाहिए होता है, एनालिसिस चाहिए होता है, आपको पर्टिकुलरली गाइड करने के लिए कोई फैकल्टी भी चाहिए होती है। तो जब आपका पेटेंट या कोई भी इनोवेटिव आइडिया होता है तो आपके जो HOD है या जो भी मैनेजमेंट है वो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई फैकल्टी असाइन करेंगे फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो आपको हेल्प करेंगे उस प्रोडक्ट को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। ओके, दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट कि आपको इंस्टीट्यूशनल वे से ही जाना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस, अगर आप इसके बाद किसी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ आप R&D टीम में काम करते हैं, तो वो आपसे जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, उस कंपनी में आप पहली लाइन जो उन्होंने मेंशन की होती है R&D में वो यही होती है कि आज के बाद जब तक आप कंपनी में एम्प्लॉयड रहेंगे तब तक आप अपने नाम से कोई भी IPR रजिस्टर नहीं करा सकते। वहाँ वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो वो कंडीशन स्ट्रिक्टली मेंशन करते हैं, और इंस्टीट्यूशन में वो एक्चुअली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ IP पॉलिसी होती है, उससे ये चीज़ें रेगुलेट होती है। आई थिंक क्लियर हो गई। ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन एक्चुअली, वेरी क्वेश्चन, वेरी सरप्राइज टू दिस क्वेश्चन। तो आप ट्रेडमार्क में क्या नहीं ले सकते ये थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। कई बार आप ऐसा करते हैं, यू कैन नॉट इंक्लूड अ स्टेट एम्ब्लम, लाइक आप जो अशोका का चिन्ह है आप अपने ट्रेडमार्क में वो नहीं ले सकते। सिमिलरली यू कैन नॉट यूज ऑफिशियल हॉलमार्क लाइक ISI या जो दूसरे BIS हॉलमार्क है आप उसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट यू कैन नॉट इंक्लूड इन योर लोगो और इमेज। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज यूजुअली वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 10 years, but you can extend that period for next year by paying the renewal dues. So the protection for the trademarks will be endless. Just आपको renewal fees देना है हर 10 साल बाद और आपका protection endless होगा। So here is some example of trademark. मैं आपसे एक बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि आप कंपनी की इमेज पर जाकर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। कंपनी ने कोई क्वालिटी का आपके साथ एग्रीमेंट नहीं किया, दैट मींस लीगली ट्रेडमार्क आर नॉट लिंक्ड विद द क्वालिटी। वो अपनी इमेज के लिए उस क्वालिटी को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट लीगली बाइंड टू प्रोवाइड द क्वालिटी, राइट? बट द सर्टिफिकेशन मार्क आर समथिंग दे आर लिंक्ड विद द
quality actually. Okay, so certification mark are different from trademark. They are linked with the quality. Like BIS or hallmark, अगर इसके साथ इन्हें 18 कैरेट या समथिंग मेंशन किया, that means वो गोल्ड 18 कैरेट का होगा. They assure the quality. Certification mark assure the quality, while trademark are not. So let's take some example. ये एक एग्जाम्पल है कैमरा फोन का. इसमें डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे यूज हुए हैं. द ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल मैकेनिज्म जो इस कैमरे के अंदर यूज हुआ, दैट इज अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी. जो यहाँ कैनन मेंशन किया है इस कंपनी ने, दैट इज ट्रेडमार्क. और इसका आउटर लुक जो है वो डिजाइन. दैट मींस इसका जो टेक्नोलॉजी पार्ट है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल मैकेनिज्म, क्या ये दूसरा कोई कैमरा यूज कर सकता है इस टेक्नोलॉजी को? नहीं. क्या इसकी जो लुकिंग है, एस्थेटिक लुक है, क्या इसका आउटर लुक का कोई टॉय मेकिंग कंपनी या दूसरा लाइक कैमरा मैन्युफैक्चर कंपनी यूज कर सकती है? नो. क्या कोई कंपनी कैमरा बनाकर उसका कैनन लिख सकती है? नो. ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रेडमार्क. एनी डाउट? चलिए, दैट इज द फोर्थ आइडिया, दैट इज कॉपीराइट. इसको एक्चुअली ये प्रोजेक्ट पर वर्क नहीं कर सकता. अवॉइड ये कॉपीराइट में आपके में क्या क्या मैटर आते हैं, क्या क्या आपको प्रोटेक्शन मिलती है. सपोज लिटरेरी वर्क, दैट मीन्स आपने कोई किताब लिखी, कोई पोइम लिखी, कोई प्रोज लिखा, कोई कविता लिखी, समथिंग यू हैव रिटन. तो अगर आपने ऐसा कोई काम किया है और आप चाहते हैं कि उस पेंटिंग को, उस ड्राइंग को कोई और कॉपी ना कर पाए, तो आपको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? कॉपीराइट. आपको कॉपीराइट मिल जाएगा, उसके बाद उस चीज को कोई कॉपी नहीं कर सकता फॉर कॉमर्शियल यूज. अगर आपने कोई पेंटिंग की और अगर आपने उसका कॉपीराइट ले लिया, तो क्या उस पेंटिंग को कोई और बिना आपकी परमिशन के यूज कर सकता है? नहीं. ग्रेट. आपने जो फोटोग्राफ कोई भी कैप्चर किया अपने फोन से, क्या उसको बिना परमिशन के कोई यूज कर सकता है? नहीं. दैट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस. आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर सोशल मीडियाज पे आपने देखा होगा, लोग यूज्ड टू गिव अ पिक क्रेडिट. am I right or wrong? लिखा आपने देखा होगा पिक क्रेडिट टू दिस मैन. ऐसा क्यों लिखते हैं लोग? ये प्रैक्टिस स्टार्ट कहां से होती है? तो एक्चुअली आपको मैं बताता हूं कि जिस व्यक्ति ने फोटोग्राफ लिया है फोन से, उस इमेज के ऊपर कॉपीराइट किसका है? उस व्यक्ति का जिसने वो फोटोग्राफ कैप्चर किया. फॉर एग्जाम्पल कुमार हर्ष. इट्स अ नेम लाइक पोएट. ओके, तो कुमार हर्ष मेरे साथ है. सपोज करो मैंने अपने फोन से इनका एक जस्ट अभी एक रैंडम पिक्चर मैंने क्लिक कर लिया. इस फोटोग्राफ का राइट किसके पास है? मेरे पास, बिकॉज आई हैव कैप्चर्ड दिस फोटोग्राफ. am I right or wrong? सभी को समझ में आ गया? मैंने अपने फोन से एक फोटोग्राफ लिया कुमार जी का, तो इस इमेज का कॉपीराइट का जो ओनरशिप है वो किसका होगा? मेरा. सपोज इनको ये फोटो अच्छा लगा और ही वांट टू शेयर दिस फोटोग्राफ इन हिज लाइक ट्विटर अकाउंट और फेसबुक और सोशल मीडिया. क्या ये मेरी बिना परमिशन के यूज कर सकते हैं? नहीं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉपीराइट, कि इनको बिना मेरी परमिशन के ये फोटोग्राफ जो मैंने लिया, जिसमें मेरा कॉपीराइट है, ये यूज नहीं कर सकते. सो व्हाट दे यूज टू डू, ये उस फोटोग्राफ को अगर कहीं पिक्चर भी करेंगे तो उस पिक का सोर्स या पिक का क्रेडिट में मेरा नाम मेंशन जरूर करेंगे. अगर इन्होंने ये नहीं किया तो आई हैव अ लीगल लाइक ग्राउंड टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम. डोंट वरी, आई विल नॉट डू दैट. बट फॉर एग्जांपल, समझ रहे हैं ये वाली चीज, कॉपीराइट की ब्यूटी समझ पा रहे हैं नहीं? क्या मैं पहुंचा पा रहा हूं आप तक जो मैं कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं? तो पिक क्रेडिट का जो लाइक एक प्रैक्टिस है वो स्टार्ट वहीं से हुआ. बॉलीवुड या बड़े स्टार्स जिनमें आज फ्रेंडशिप है, कल हो सकता है फ्रेंडशिप ना रहे, तो दे यूज्ड टू गिव अ पिक क्रेडिट. ये पिक जो है किसने कैप्चर किया? अगर वो पिक उनके फोटोग्राफर ने कैप्चर किया है तो फोटोग्राफर के साथ उनका लीगल एग्रीमेंट पहले से होता है, इसीलिए वो उसको पिक क्रेडिट नहीं देते. गॉट इट? समझ गए? इस पे एक बहुत बेहतरीन केस है, आप गूगल कीजिएगा आपको पता चलेगा. एक लाइक व्यक्ति थे जो किसी फॉरेस्ट में विजिट करने गए थे और उनका फोन गिर गया.
फोन ले गया, एक बंदर ने उठाया और बंदर ने रैंडमली एक फोटोग्राफ कैप्चर कर लिया, दैट इज कॉल्ड सेल्फी। सेल्फी के साथ गूगल पर सर्च कीजिएगा। अब उस बंदर ने सेल्फी जो कैप्चर की, उस इमेज पर कॉपीराइट किसका हुआ? उस मंकी का, राइट और रॉन्ग? लेकिन जिस बंदे का फोन गिरा था उसने उस फोटो को एक्चुअली डिफरेंट मैगजीन्स में पब्लिश किया और कहा कि ये मेरा क्रिएशन है, मेरे पास इसका कॉपीराइट है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें उसने बोली। बाद में एक पेटा करके ऑर्गेनाइजेशन से जो एनिमल्स के लिए काम करती है, आपने सुना होगा, उसने केस फाइल किया कि नहीं, अगर वो एनिमल ने भी कैप्चर किया है तो एनिमल हैज अ राइट टू हैव अ कॉपीराइट। ओके, तो ये बड़ी बहुत अच्छी केस स्टडी है, आप उसको गूगल पे कीजिएगा, मजा आएगा इसको पढ़ के। So that is the beauty of copyright actually. Am I clear? Similarly, अगर आप कोई ड्राइंग करते हैं तो आपको उसका कॉपीराइट मिलेगा। Similarly, अगर आप कोई फिल्म बनाते हैं, आपको कोई डाउट है, you just ask me, क्योंकि आप अपने बीच में डिस्कस करके डाउट को और इलाज कर दोगे। Yes. That's an ethical point actually. वो दूसरा एंगल। इनका एक अच्छा क्वेश्चन था कि अगर फोन मेरा है तो रिसोर्स डज नॉट मैटर एट ऑल, द पर्सन हु कैप्चर द फोटो हैव अ कॉपीराइट। तो फिल्म इंडस्ट्रीज में भी यही होता है, कोई भी फिल्म बनने से पहले एक्चुअली जितने भी लाइक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो भी लोग होते हैं उनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है कि इस फिल्म का राइट या इस फिल्म का कॉपीराइट किसको असाइन होगा। जनरली वो प्रोड्यूसर के पास रहता है। सिमिलरली फॉर म्यूजिक and similarly for choreographer work, similarly for choreography, similarly for sculpture। तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी काम है तो आप इसको कॉपीराइट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गाना है जो किसी फिल्म में आई थिंक पिक्चराइज नहीं हुआ है लेकिन बहुत फेमस है। गाने का नाम है ये मेरे वतन के लोगों, आपने सुना होगा। ऐसा गाना है जिसको आप अगर सुनेंगे तो बहुत पैट्रियोटिक फील आएगा। ये एक्चुअली लिखा था कवि प्रदीप जी ने, तो दैट मींस इसके कॉपीराइट किसके पास थे? इनके पास थे। इन्होंने एक डील की सारेगामा इंडिया के साथ विद सम अमाउंट, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 1 करोड़, इन्होंने अपने सारे के सारे कॉपीराइट किसको भेज दिए? सारेगामा को। तो अभी इस गाने के कॉपीराइट किसके पास है? इस कंपनी के पास है। अगर इस गाने को टीवी चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बजाया या सुनाया जाएगा तो इनको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सारेगामा से। ये गाना बिना इनकी परमिशन के कहीं भी बज या चला सकते हैं कमर्शियल यूज के लिए? नहीं। ओके, तो ये इनके साथ क्या देंगे? इनको मनी देंगे और ये इनको परमिशन देगा फॉर यूज दिस सॉन्ग। सो दिस इज हाउ द कॉपीराइट वर्क और दिस इज हाउ समवन कैन अर्न मनी फ्रॉम द कॉपीराइट। ये कुछ टेन्योर है, लाइक आपका आर्टिस्टिक यानी बुक वगैरह है, आपकी पोइम है, आपके प्रोज हैं, आपकी कहानी है, तो उसको मिलता है प्रोटेक्शन 60 ईयर के लिए। दैट मींस आपका जो कॉपीराइटेड मैटर है वो आपकी लाइफ के साथ चलेगा, प्लस आपकी लाइफ जहां खत्म होगी, दैट मींस आपकी डेथ जिस ईयर में होगी उस ईयर के बाद 60 ईयर के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, सो हियर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो क्रेटा गाड़ी या कोई भी डिजाइनर डिजाइन करता है वो उसका इंडस्ट्रियल डिजाइन लेता है फॉर 15 इयर्स और वो उसका कॉपीराइट भी लेता है फॉर नेक्स्ट 60 इयर्स। सो दिस इज अ ग्रेट पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंची द मोना लिसा। क्या कोई मुझे बता सकता है ये फेमस पेंटिंग क्यों है, जिसको लाइक वी विल एवेल्युएट इन मिलियंस डॉलर? बता सकता है कि ये क्यों फेमस है? कि यस प्लीज। या किसी भी व्यू से देखें तो वो आए हमारे तरफ ही दिखता है। सो ये इन्होंने ये पेंटिंग ड्राइंग की और इसकी वर्थ आज दुनिया में सबसे ज्यादा है, इन करोड़ और इन लाइक मोर देन करोड़ एक्चुअली। तो इस पेंटिंग की ऐसी ब्यूटी क्या है कि लोग इसके लिए 1 करोड़ रुपए या 10 या 20 या 100 करोड़ देने को तैयार है। तो एक पॉइंट जो इन्होंने बिल्कुल सही हाईलाइट किया कि अगर ये पेंटिंग आपके ड्राइंग रूम में लगी हुई है तो आप किसी भी एंगल से इस पेंटिंग को देखेंगे, यू विल फील द लेडी इज लुकिंग एट यू, नो मैटर व्हाट द एंगल इज।
अगर आप सामने खड़े हुए देखेंगे या दूसरे एंगल से भी देखेंगे तब भी आपको लगेगा द लेडी इज वाचिंग यू। एंड अनदर पॉइंट इज द न्यूट्रलिटी ऑफ द इमोशन। दिस इज सो इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ये पता होगा ना, यू विल बी इन लव विद दिस लेडी एक्चुअली। सी, अगर आपके ड्राइंग रूम में ये पेंटिंग है और आप किसी दिन सपोज करो आप कोई बड़ा प्राइज जीतते हैं, आप बहुत खुश हैं और उस दिन अपने घर जाते हैं, यू विल फील द लेडी इज ऑल्सो हैप्पी फॉर यू। ओके, एंड ऑन अनदर पॉइंट डे इफ यू आर वेरी सैड डे, यू हैव अ वेरी टफ डे और उसके बाद आप घर लौटते हैं और इस लेडी की तरफ देखते हैं, देन यू विल फील द लेडी इज ऑल्सो सैड। So that is the beauty. इस beauty को इस तरीके से पेंट कर पाना, it's quite difficult. No other than Leonardo da Vinci can do that. Yes. ये इंडिया की सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग है जो मुझे भी समझ नहीं आती. Hopefully, it's a modern art actually. It's a beautiful actually. इसको explain करेंगे it will take a lot of time. Let's take some example. This is a MacBook. इस बुक पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये जो सिंबल लगा है ये किससे प्रोटेक्टेड है? ट्रेडमार्क से। वेरी गुड। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंट। वेरी गुड। इसका जो आउटर लुक है वो डिजाइन से। इसके साथ जो यूजर मैनुअल मिलता है वो कॉपीराइट। दैट मीन कि एप्पल का जो यूजर मैनुअल है उसके कंटेंट को भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। सिंपल एग्जांपल, इसमें जो अनलॉकिंग सिस्टम है फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग, दैट इज अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। ये जो लोगो है दैट इज ट्रेडमार्क और इसका जो आउटर और फिजिकल अपीयरेंस है दैट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन। सो इट इज ऑल अबाउट आईपीआर। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी बिकॉज़ आई हैव कंप्लीटेड ऑल द आईपीआर्स। यदि अभी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन है ये इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंडियन मार्केट में एक्चुअली ओला का इनका क्वेश्चन ये है कि ओला इंडियन मार्केट में पहले आई, पहले उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, अपनी वैल्यू सेटअप की और उसके बाद सडनली उबर आया और उबर ने पूरी मार्केट कैप्चर की। तो ऐसा क्या था जो ओला ने ले किया? द आंसर इज वेरी 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 सिंपल, दे आर लैकिंग इन आईपीआर। ओला ने कोई भी आईपीआर या कोई भी पेटेंट इसके लिए फाइल नहीं किया। ओला के पास कोई भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसने सिर्फ क्या यूज़ किया? अपना रिसोर्स यूज़ किया, एक ड्राइवर अपॉइंट किया, एक ऐप को यूजर्स के साथ बांटा, उसकी इंफॉर्मेशन दी ड्राइवर को, ड्राइवर ने उसको पिक किया और छोड़ा। ये सिंपल सा मॉडल था। तो उबर ने कहा ये मॉडल हम भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें आईपीआर का कोई इशू नहीं था। ओके, अभी कुछ पे टाइम, चलिए जल्दी से कुछ खत्म करते हैं। This type of IP protect a painting painted by an artist. Answer is copyright. Great. Second question. How long do patent usually last for? 10 years, 20 years, 40, 60? 20 years. It's great. Which IP? I mean, how you can protect these symbols? Great. How you can protect these creations like book, copyright? Great. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for coming. And after traveling from long night and delivering such an interactive session to us, now I would like to invite Dr. Rahul Srivastava for giving a memento to sir. So please come front side of the podium, sir. तो आपको क्या लगता है सेशन इंटरेक्टिव हुआ? मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ बच्चों ने 10, 15, 20 बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे
जो आज तक हमारे सेशन में आपने नहीं पूछी। तो इट इज अ वेरी गुड साइन कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर अगर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो ये सोच आपको प्लेसमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगी, आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जोरदार तालियों से सबको थैंक यू जरूर बोलिए। थैंक यू।